کیا آپ جانتے ہیں ایک وقت ایسا بھی تھا جب مکہ کی خاموش وادیوں میں صرف 3 لوگ ایک نئے دین پر کھڑے تھے، ایک نوجوان، ایک بچہ اور ایک عورت، اور پوری دنیا ان کے خلاف تھی۔ وہ لمحہ جب ایک بیٹے نے اپنے باپ کے سامنے اعلان کیا، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں۔ وہ وقت جب ایک غلام نے آزادی کو ٹھکرا کر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، اور وہ دن جب ایک سچے دوست نے بغیر کسی سوال کے کہا، آپ سچ کہتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ان عظیم لوگوں کی جنہوں نے سب کچھ کھو کر بھی دین نہیں چھوڑا۔ آخر کون تھے یہ لوگ اور کیسے انہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا؟ جانیے اس ایمان افروز داستان میں۔ لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق استفسار کیا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں، لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہتا ہے حق ہے۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریشی کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا۔ عفیف کندی رضی اللہ عنہ ایک تاجر تھے۔ ان کا بیان ہے، اسلام قبول کرنے سے بہت پہلے میں ایک مرتبہ حج کے لیے آیا۔ تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے میں عباس ابن عبد المطلب کے پاس گیا۔ وہ میرے دوست تھے اور یمن سے اکثر عطر خرید کر لاتے تھے، پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ منیا میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان آیا۔ اس نے غروب ہوتے سورج کی طرف غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا تو اس نے بہت اہتمام سے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ پھر ایک لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا۔ اس نے وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد ان نوجوان نے رکوع کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان نے سجدے میں گیا تو وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس بن عبد المطلب سے پوچھا، عباس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا ہے، علی ابن طالب ہے، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی خدیجہ ہے۔ یہ عفیف کندی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے، کاش اس وقت ان میں چوتھا آدمی میں ہوتا۔ اس واقعے کے وقت غالباً حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، اگرچہ اس وقت تک دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ پہلے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ شادی کے بعد انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دے دیا تھا۔ یہ غلام کس طرح بنے یہ بھی سن لیں۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کی والدہ انہیں لیے اپنے ماں باپ کے ہاں جا رہی تھی کہ قافلہ کو لوٹ لیا گیا۔ ڈاکو ان کے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھی لے گئے، پھر انہیں عکاظ کے میلے میں بیچنے کے لیے لایا گیا۔ ادھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو میلے میں بھیجا۔ وہ ایک غلام خریدنا چاہتی تھی۔ آپ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ میلے میں آئے تو وہاں انہوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا ردے دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو یہ اچھے لگے، چنانچہ انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے انہیں خرید لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ پسند آئے اور انہوں نے انہیں اپنی غلامی میں لے لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ اس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنے۔ پھر جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو فوراً آپ پر ایمان لے آئے۔
بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، مگر یہ عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ ان کے والد ایک مدت سے ان کی تلاش میں تھے۔ کسی نے انہیں بتایا کہ زید مکہ میں دیکھے گئے ہیں۔ ان کے والد اور چچا انہیں لینے فوراً مکہ معظمہ کی طرف چل پڑے۔ مکہ پہنچ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ زید ان کے بیٹے ہیں۔ ساری بات سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، تم زید سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور یہاں میرے پاس رہنا چاہیں تو ان کی مرضی۔ زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس پر باپ نے کہا، تیرا برا ہو زید، تو آزادی کے مقابلے میں غلامی کو پسند کر رہا ہے۔ جواب میں حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، ان کے مقابلے میں کسی اور کو ہرگز نہیں چن سکتا۔ آپ نے حضرت زید رضی اللہ کی یہ بات سنی تو آپ فوراً حجر اسود کے پاس گئے اور اعلان فرمایا، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ ان کے والد اور چچا مایوس ہو گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ جب چاہیں زید سے ملنے آ سکتے۔ چنانچہ وہ ملنے کے لیے آتے رہے۔ تو یہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت زید واحد صحابی ہیں جن کا قرآن کریم میں نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے ہی دوست تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندی وہاں آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھپھی خدیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جونی حضرت حکیم رضی اللہ عنہ کی باندی کی یہ بات سنی، چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ سے اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وحی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ نے انہیں اس وقت دیا تھا جب آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے آپ کو جھٹلایا تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر آپ کی تصدیق کی تھی اور آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ غرض ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اس لحاظ سے ابو بکر صدیق وہ پہلے آدمی ہے جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یوں بھی بہت خوبصورت تھے۔ اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب عتیق کر رکھا تھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت، اس کا ایک مطلب آزاد بھی ہے۔ یہ لقب دینے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا، یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ غرض اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو ملا۔ قریش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بہت خوش اخلاق تھے، قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف، سخی اور دولت مند تھے۔ روپیہ پیسہ بہت فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے۔ لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس امت میں سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے اور اس سلسلے میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ ان کی بتائی ہوئی تعبیریں بالکل درست ثابت ہوتی رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میدان کے ماہر
इस बारे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर ताबीर बताने वाले फरमा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु नसबनामा बयान करने में भी बहुत माहिर थे, बल्कि कहा जाता है कि इस इल्म के सबसे बड़े आलिम थे। हज़रत ज़ुबैर बिन अल-मुज़म भी इस इल्म के माहिर थे। वो फरमाते हैं, मैंने नसबनामों का फ़न और इल्म और ख़ास तौर पर कुरैश के नसबनामों का इल्म हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से ही हासिल किया है, इसलिए कि वो कुरैश के नसबनामों के सबसे बड़े आलिम थे। कुरैश के लोगों को कोई मुश्किल पेश आती तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से राब्ता करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने जिसे भी इस्लाम की दावत दी उसने कुछ न कुछ सोच विचार और किसी कदर वक्फे के बाद इस्लाम कबूल किया, सिवाय अबू बकर के। वो बगैर हिचकिचाहट के फौरन मुसलमान हो गए। अबू बकर सबसे बेहतर राय देने वाले हैं। मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है, अपने मामलात में अबू बकर से मशवरा किया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वज़ीर के दर्जे में थे। आप हर मामले में उनसे मशवरा लिया करते थे। एक हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरी मदद के लिए 4 वज़ीर मुकर्रर फरमाए हैं। उनमें से 2 आसमान वालों में से हैं, यानी जिब्रील और मीकाइल, और 2 ज़मीन वालों में से एक अबू बकर और दूसरे उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा। इस्लाम लाने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में आपने देखा कि चांद मक्का में उतर आया है और उसका एक एक हिस्सा मक्का के हर घर में दाखिल हो गया है, और फिर सारे का सारा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की गोद में आ गया। आपने ये ख्वाब एक ईसाई आलिम को सुनाया। उसने उस ख्वाब की ये ताबीर बयान की कि तुम अपने पैगंबर की पैरवी करोगे, जिसका दुनिया इंतज़ार कर रही है और जिसके ज़ुहूर का वक्त करीब आ गया है, और ये कि पैरोकारों में से सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान होगे। एक रिवायत के मुताबिक आलिम ने कहा था, अगर तुम अपना ख्वाब बयान करने में सच्चे हो तो बहुत जल्द तुम्हारे गांव में से एक नबी ज़ाहिर होंगे। तुम उस नबी की ज़िंदगी में उसके वज़ीर बनोगे और उनकी वफ़ात के बाद उनके खलीफा होगे। कुछ अरसा बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन जाने का इत्तेफाक हुआ था। यमन में ये एक बूढ़े आलिम के घर ठहरे। उसने आसमानी किताबें पढ़ रखी थीं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को देखकर उसने कहा, मेरा ख्याल है तुम हरम के रहने वाले हो, और मेरा ख्याल है तुम कुरैशी हो और तीमी ख़ानदान से हो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब में फरमाया, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब उसने कहा, मैं तुमसे एक बात और कहता हूं, तुम जरा अपना पेट पर से कपड़ा हटा कर दिखाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उसकी बात सुनकर हैरान हुए और बोले, ऐसा मैं उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक कि तुम उसकी वजह नहीं बता दोगे। उस पर उसने कहा, मैं अपने मजबूत इल्म की बुनियाद पर कहता हूं कि हरम के इलाके में एक नबी का ज़हूर होने वाला है। उनकी मदद करने वाला एक नौजवान होगा और एक पुख्ता उम्र वाला होगा। जहां तक नौजवान का ताल्लुक है, वो मुश्किलात में कूद जाने वाला होगा। जहां तक पुख्ता उम्र के आदमी का ताल्लुक है, वो सफ़ेद रंग का कमज़ोर जिस्म वाला होगा। उसके पेट पर एक बालदार निशान होगा। हरम का रहने वाला तैमी ख़ानदान का होगा। और अब ये ज़रूरी नहीं कि तुम मुझे अपना पेट दिखाओ, क्योंकि बाकी सब अलामतें तुम में मौजूद हैं। उसकी इस बात पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने पेट पर से कपड़ा हटा दिया। वहाँ उनकी नाफ के ऊपर सियाह और सफ़ेद बालों वाला निशान मौजूद था। तब वो पुकार उठा, परवरदिगार काबा की कसम, तुम वही हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब मैं यमन में अपनी ख़रीदारी और तिजारती काम कर चुका तो रुखसत होने के वक्त उसके पास आया। उस वक्त उसने मुझसे कहा, मेरी तरफ से चंद शेर सुन लो जो मैंने उस नबी की शान में कहे हैं। उस पर मैंने कहा, अच्छी बात है, सुनाओ। तब उसने मुझे वो शेर सुनाए। उसके बाद जब मैं मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान कर चुके थे। फौरन ही मेरे पास कुरैश के बड़े बड़े सरदार आए। उनमें ज़्यादा अहम अक़बा बिन अबी मुईत, शेबा, अबू जहल थे। उन लोगों ने मुझसे कहा, ए अबू बकर, अबू तालिब के यतीम ने दावा किया है कि वो नबी हैं।
अगर आपका इंतज़ार ना होता तो हम उस वक्त तक सब्र ना करते। अब जबकि आप आ गए हैं, उनसे निपटना आप ही का काम है। और ये बात उन्होंने इसलिए कही थी कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अच्छे अंदाज से उन लोगों को टाल दिया और ख़ुद आपके घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। आप बाहर तशरीफ़ लाए। मुझे देखकर आपने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मैं तुम्हारी और तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, इसलिए अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ। आपकी बात सुनकर मैंने कहा, आपके पास इस बात का सबूत है? आपने मेरी बात सुनकर इरशाद फरमाया, इस बूढ़े के वो शेर जो उसने आपको सुनाए थे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, मेरे दोस्त, आपको उनके बारे में किसने बताया? आपने इरशाद फरमाया, इस अजीम फरिश्ते ने जो मुझसे पहले भी तमाम नबियों के पास आता रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, अपना हाथ लाइए, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप मेरे ईमान लाने पर बहुत खुश हुए, मुझे सीने से लगाया, फिर कलमा पढ़कर मैं आपके पास से वापस आ गया। मुसलमान होने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो सबसे पहला काम किया वो था इस्लाम की तबलीग। उन्होंने अपने जानने वालों को इस्लाम का पैगाम दिया, उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया। चुनाचे उनकी तबलीग के नतीजे में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के मुसलमान होने की खबर उनके चचा हुक्म को हुई तो उसने उन्हें पकड़ लिया और कहा, तू अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद का दीन कबूल करता है? अल्लाह की कसम, मैं तुझे उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तू इस दीन को नहीं छोड़ेगा। इसकी बात सुनकर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं इस दीन को कभी नहीं छोड़ूंगा। उनके चचा ने जब उनकी पुख्तगी और साबित कदमी देखी तो उन्हें तकालीफ पहुंचाएं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु साबित कदम रहे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़जीलत में एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में हर नबी का एक रफ़ीक यानी साथी होता है, और मेरे साथी वहाँ उस्मान इब्न अफ़्फ़ान होंगे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम की तबलीग जारी रखी। आपकी कोशिशों से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुसलमान हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 8 साल थी। इसी तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की कोशिश से मुसलमान हुए। जाहिलियत के ज़माना में उनका नाम अब्दुल काबा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुर्रहमान रखा। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अमैया इब्न खलफ मेरा दोस्त था। एक रोज़ उसने मुझसे कहा, तुमने उस नाम को छोड़ दिया जो तुम्हारे बाप ने रखा था। जवाब में मैंने कहा, हाँ, छोड़ दिया। ये सुनकर वो बोला, मैं रहमान को नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हारा नाम अब्दुल अला रखता हूँ। चुनाचे मुशरिक इस रोज़ से मुझे अब्दुल अला कहकर पुकारने लगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु अपने इस्लाम लाने का वाक़या इस तरह बयान करते हैं, मैं अक्सर यमन जाया करता था। जब भी वहाँ जाता अस्कलान बिन अवाकिफ हमेरी के मकान पर ठहरा करता था, और जब भी मैं उसके यहाँ जाता वो मुझसे पूछा करता था, क्या वो शख्स तुम लोगों में ज़ाहिर हो गया है जिसकी शोहरत और चर्चे हैं? क्या तुम्हारे दीन के मामले में किसी ने मुखालफत का ऐलान किया है? मैं हमेशा यही कहा करता था कि नहीं, ऐसा कोई शख्स ज़ाहिर नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो साल आ गया जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ। मैं इस साल यमन गया तो उसी के यहाँ ठहरा। उसने यही सवाल पूछा। तब मैंने उसे बताया, हाँ, इनका ज़हूर हो गया है, इनकी मुखालफत भी हो रही है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ज़मीन वालों में भी अमानतदार हो और आसमान वालों में भी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु को भी इस्लाम की दावत दी। उन्होंने कोई हिचकिचाहट ज़ाहिर ना की, फ़ौरन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले आए। आपसे आपके पैगाम के बारे में पूछा। आपने उन्हें बताया तो ये उसी वक्त मुसलमान हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। ये बनी ज़ोहरा के ख़ानदान से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा आमना भी उस ख़ानदान से थीं। इसीलिए हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू कहलाते थे। आपने हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए एक बार फरमाया, ये मेरे मामू हैं, है कोई जिसके ऐसे मामू हों? हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु जब इस्लाम लाए और उनकी वालदा को उनके मुसलमान होने का पता चला तो ये बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी। इधर ये अपनी वालदा के बहुत फर्मा बरदार थे। वालदा ने उनसे कहा, क्या तुम ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने बड़ों की खातिरदारी और माँ बाप के साथ अच्छा मामला करने का हुक्म दिया है? हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये जवाब सुनकर वालदा ने कहा, बस तो खुदा की कसम, मैं उस वक़्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक मोहम्मद के लाए हुए पैगाम को कुफ्र नहीं कहोगे और असाफ और नायला बुतों को जाकर छोगे नहीं। उस वक्त के मुशरिकों का तरीका ये था कि वो उन बुतों के खुले मुंह में खाना और शराब डाला करते थे। अब वालदा ने खाना पीना छोड़ दिया। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी वालदा से कहा, खुदा की कसम माँ, तुम्हें नहीं मालूम, अगर तुम्हारे पास 1000 जिंदगियां होती और वो सब एक एक करके इस वजह से ख़त्म होती, तब भी मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हरगिज़ न छोड़ता। इसलिए अब ये तुम्हारी मर्जी है, खाओ या ना खाओ। जब माँ ने उनकी ये मजबूती देखी तो खाना शुरू कर दिया। ताम उसने अब एक और काम किया, दरवाजे पर आ गई और चीख चीख कर कहने लगी, क्या मुझे ऐसे मददगार नहीं मिल सकते जो साद के मामले में मेरी मदद करे, ताकि मैं उसे घर में कैद कर दूं और कैद की हालत में ये मर जाए या अपने नए दीन को छोड़ दे। हज़रत साद फरमाते हैं, मैंने ये अल्फाज सुने तो माँ से कहा, मैं तुम्हारे घर का रुख भी नहीं करूंगा। उसके बाद हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ दिन तक घर ना गए। वालदा तंग आ गई और उसने पैगाम भेजा, तुम घर आ जाओ, दूसरों के मेहमान बनकर हमें शर्मिंदा ना करो। चुनाचे ये घर चले आए। अब घर वालों ने प्यार और मोहब्बत से सुझाना शुरू किया। वो उनके भाई आमिर की मिसाल देकर कहती, देखो आमिर कितना अच्छा है, उसने अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ा। लेकिन फिर उनके भाई आमिर भी मुसलमान हो गए। अब तो वालदा के गैज़ और ग़ज़ब की इंतहा ना रही। माँ ने दोनों भाइयों को बहुत तकालीफ पहुंचाए। आखिर आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु तंग आकर हबशा को हिजरत कर गए। आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु के हबशा हिजरत कर जाने से पहले एक रोज़ हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु घर आए तो देखा माँ और आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु के चारों तरफ बहुत से लोग जमा हैं। मैंने पूछा, लोग क्यों जमा हैं? लोगों ने बताया, ये देखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भाई को पकड़ रखा है और अल्लाह से अहद कर रही है कि जब तक आमिर बेदीनी नहीं छोड़ेगा उस वक्त तक ये ना तो खजूर के साए में बैठेगी और ना खाना खाएगी और ना पानी पिएगी। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह सुनकर कहा, अल्लाह की कसम माँ, तुम उस वक्त तक खजूर के साए में ना बैठो और उस वक्त तक कुछ ना खाट पियो जब तक कि तुम जहन्नुम का ईंधन ना बन। गरज उन्होंने माँ की कोई परवाह ना की और दीन पर डटे रहे। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की कोशिशों से हज़रत तलहा तीमी रज़ी अल्लाह अन्हु भी इस्लाम ले आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और ये आपके हाथ पर मुसलमान हुए। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने इस्लाम लाने का खुलकर ऐलान कर दिया। उनका ऐलान सुनकर नौफल इब्ने अदविया ने उन्हें पकड़ लिया। उस शख्स को कुरैश का शेर कहा जाता था। उसने दोनों को एक ही रस्सी से बांध दिया। उसकी इस हरकत पर उनके कबीले बनु तमीम ने भी उन्हें ना बचाया। अब चूंकि नौफल ने दोनों को एक ही रस्सी से बांधा था और दोनों के जिस्म आपस में बिल्कुल मिले हुए थे, इसलिए उन्हें करीनीन कहा जाने लगा, यानी मिले हुए। नौफल बिन अदविया के जुल्म की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ए अल्लाह, इब्न अदविया के शर से हमें बचा। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु अपने इस्लाम कबूल कर लेने का सबब इस तरह बयान करते हैं, मैं एक मर्तबा बसरिया के बाजार में गया। मैंने वहां एक राहिब को देखा। वो अपनी खानकाह में खड़ा था और लोगों से कह रहा था, इस मर्तबा हज से आने वालों से पूछो, क्या उनमें कोई हरम का बाशिंदा भी है? मैंने आगे बढ़कर कहा, मैं हूं हरम का रहने वाला। मेरा जुमला सुनकर उसने कहा,
क्या अहमद का ज़हूर हो गया है? मैंने पूछा, अहमद कौन? तब उस राहिब ने कहा, अहमद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये इसका महीना है। वो इस महीने में ज़ाहिर होगा। वो आखिरी नबी है। इसके ज़ाहिर होने की जगह हरम है और इसकी हिजरत की जगह वो इलाका है जहां बागात हैं, सब्ज़ाज़ार हैं। इसलिए तुम पर ज़रूरी है कि तुम इस नबी की तरफ बढ़ने में पहल करो। इस राहिब की कही हुई बात मेरे दिल में नक्श हो गई। मैं तेजी के साथ वहां से वापस रवाना हुआ और मक्का पहुंचा। यहां पहुंचकर मैंने लोगों से पूछा, क्या कोई नया वाकया भी पेश आया है? लोगों ने बताया, हाँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अमीन ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देना शुरू की है। अबू बकर ने उनकी पैरवी कबूल कर ली है। मैं ये सुनते ही घर से निकला और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पास पहुंच गया। मैंने उन्हें राहिब की सारी बात सुना दी। सारी बात सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और आपको ये पूरा वाक़या सुनाया। आप सुनकर बहुत खुश हुए। इसी वक्त मैं भी मुसलमान हो गया। ये हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु अशरे मुबश्शरा में से हैं, यानी जिन सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी, उनमें से एक हैं। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कोशिशों से जिन सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कलमा पढ़ा, उनमें से 5 अशरे मुबश्शरा में शामिल हैं। वो ये हैं, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हुम। बाज़ ने उनमें छठे सहाबी का भी इजाफा किया है। वो हैं हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु। इन हज़रात में हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुर्रहमान और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हुम कपड़े के ताजिर थे। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु जानवर ज़िबा करते थे और हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु तीर बनाने का काम करते थे। उनके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए। वो अपने इस्लाम लाने का वाक़या यूं बयान करते हैं, मैं एक दिन उक़बा बिन अबी मुआयद के ख़ानदान की बकरियां चुरा रहा था। इसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आ गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आपके साथ थे। आपने पूछा, क्या तुम्हारे पास दूध है? मैंने कहा, जी हाँ, लेकिन मैं तो अमीन हूं, यानी ये दूध तो अमानत है। आपने फरमाया, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बकरी है जिसने अभी कोई बच्चा ना दिया हो? मैंने कहा, जी हाँ, एक ऐसी बकरी है। मैं उस बकरी को आपके करीब ले आया। उसके अभी थिन पूरी तरह नहीं निकले थे। आपने उसकी थिनों की जगह पर हाथ फेरा। उसी वक्त उस बकरी के थिन दूध से भर गए। ये वाक़या दूसरी रिवायत में यूं बयान हुआ है कि उस बकरी के थिन सूख चुके थे। आपने उन पर हाथ फेरा तो वो दूध से भर गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ये देखकर हैरान रह गए। वो आपको एक साफ पत्थर तक ले आए। वहां बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध दूहा। आपने वो दूध अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को पिलाया, फिर मुझे पिलाया और आखिर में आपने खुद पिया। फिर आपने बकरी के थिन से फरमाया, सिमट जा। चुनाचे थिन फौरन ही फिर वैसे हो गए जैसे पहले थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा देखा तो आपसे अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे इसकी हकीकत बताइए। आपने ये सुनकर मेरे सर पर हाथ फेरा और फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए, तुम तो जानेकार हो। ये अब्दुल्ला बिन मसूद बाप की बजाय माँ की तरफ से ज़्यादा मशहूर थे। उनकी माँ का नाम उम्मे अब्द था। उनका कद बहुत छोटा था, निहायत दबले पतले थे। एक मर्तबा सहाबा उन पर हंसने लगे तो आपने इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला अपने मर्तबे के लिहाज से तराजू में सबसे भारी हैं। उन्हीं के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अपनी उम्मत के लिए मैं भी उसी चीज़ पर राज़ी हो गया जिस पर इब्ने उम्मे अब्द यानी अब्दुल्ला इब्ने मसूद राज़ी हो गए। और जिस चीज़ को अब्दुल्ला बिन मसूद ने उम्मत के लिए नागवार समझा, मैंने भी उसको नागवार समझा। आप उनकी बहुत इज्जत करते थे, उन्हें अपने करीब बिठाया करते थे, उनसे किसी को छुपाया नहीं करते थे। इसीलिए ये आपके घर में आते जाते थे। ये नबी करीम के आगे आगे या साथ साथ चला करते थे। आप जब गुस्ल फरमाते तो यही पर्दे के लिए चादर तान कर खड़े होते थे। आप जब सो जाते तो यही आपको वक्त पर जगाया करते थे। इसी तरह जब आप कहीं जाने के लिए खड़े होते थे तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु
آپ کو जूते पहनाते थे। फिर जब आप कहीं पहुंचकर बैठ जाते तो ये आपके जूते उठाकर अपने हाथ में ले लिया करते थे। उनकी इन्हीं बातों की वजह से बाज़ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में मशहूर था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों में से हैं। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, दुनिया तमाम की तमाम गमों की पूंजी है। इसमें अगर कोई खुशी है तो वो सिर्फ वक्ती फ़ायदे के तौर पर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने इस्लाम लाने का वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आने से भी 3 साल पहले से मैं अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़ा करता था और जिस तरफ अल्लाह ताला मेरा रुख कर देते मैं उसी तरफ चल पड़ता था। उसी ज़माना में हमें मालूम हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा में एक शख्स ज़ाहिर हुआ है। उसका दावा है कि वो नबी है। ये सुनकर मैंने अपने भाई अन्निस से कहा, तुम उस शख्स के पास जाओ, उससे बातचीत करो और आकर मुझे इस बातचीत के बारे में बताओ। चुनाचे अन्निस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। जब वो वापस आए तो मैंने उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। उन्होंने बताया, अल्लाह की कसम, मैं एक ऐसे शख्स के पास से आ रहा हूँ जो अच्छाइयों का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है, और एक रिवायत में है कि मैंने तुम्हें इसी शख्स के दीन पर पाया है। उसका दावा है कि उसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। मैंने उस शख्स को देखा कि वो नेकी और बुलंद अखलाक की तालीम देता है। मैंने पूछा, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? उनीस ने बताया, लोग उसके बारे में कहते हैं कि ये काहिन और जादूगर है, मगर अल्लाह की कसम वो शख्स सच्चा है और वो लोग झूठे हैं। ये तमाम बातें सुनकर मैंने कहा, बस काफ़ी है, मैं खुद जाकर उनसे मिलता हूँ। उन्नीस ने फौरन कहा, ज़रूर जाकर मिलो, मगर मक्का वालों से बचकर रहना। चुनाचे मैंने अपनी लाठी हाथ में ली और रवाना हो गया। जब मैं मक्का पहुंचा तो मैंने लोगों के सामने ऐसा जाहिर किया जैसे मैं उस शख्स को जानता ही नहीं और उसके बारे में पूछना भी पसंद नहीं करता। मैं 1 माह तक मस्जिद हराम में ठहरा रहा। मेरे पास सिवाय जमजम के खाने को कुछ नहीं था। इसके बावजूद मैं जमजम की बरकत से मोटा हो गया। मेरे पेट की सुलूटें खत्म हो गई। मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता था। एक रात जब हरम में कोई तवाफ करने वाला नहीं था, अल्लाह के रसूल एक साथी अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ वहां आए और बैतुल्लाह का तवाफ करने लगे। उसके बाद आपने और आपके साथी ने नमाज पढ़ी। जब आप नमाज से फारिग हो गए तो मैं आपके नज़दीक चला गया और बोला, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने महसूस किया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो गए। फिर आपने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने जवाब में कहा, जी मैं गफ्फार कबीले का हूँ। आपने पूछा, यहाँ कब से आए हुए हो? मैंने अर्ज किया, 30 दिन और 30 रातों से यहाँ हूँ। आपने पूछा, तुम्हें खाना कौन खिलाता है? मैंने अर्ज किया, मेरे पास सिवाय जमजम के कोई खाना नहीं, उसको पी पी कर मैं मोटा हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरे पेट की सुलूटें तक खत्म हो गई हैं और मुझे भूख का बिल्कुल एहसास नहीं होता। आपने फरमाया, मुबारक हो, ये जमजम बेहतरीन खाना और हर बीमारी की दवा है। जमजम के बारे में अहादीस में आता है, अगर तुम आब जमजम को इस नीयत से पियो कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके जरिए बीमारियों से शिफा अता फरमाए, तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है। और अगर इस नीयत से पिया जाए कि इसके जरिए पेट भर जाए और भूख ना रहे, तो आदमी शिकम सैर हो जाता है। और अगर इस नीयत से पिया जाए कि प्यास का असर बाकी ना रहे, तो प्यास खत्म हो जाती है। इसके जरिए अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को सैराब किया था। एक हदीस में आता है कि जी भरकर जमजम का पानी पीना अपने आप को निफाक से दूर करना है। और एक हदीस में है कि हम में और मुनाफिकों में ये फर्क है कि वो लोग जमजम से सैराबी हासिल नहीं करते। हाँ, तो बात हो रही थी हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की। कहा जाता है अबू ज़र गफ़ारी इस्लाम में पीले आदमी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लामी सलाम के अल्फाज के मुताबिक सलाम किया। इनसे पहले किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में सलाम नहीं किया था। अब अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बैत की कि अल्लाह ताला के मामले में
वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं घबराएंगे, और ये कि हमेशा हक और सच्ची बात कहेंगे, चाहे हक सुनने वाले के लिए कितना ही कड़वा क्यों ना हो। ये हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद मुल्क शाम के इलाके में हिजरत कर गए थे। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में उन्हें शाम से वापस बुला लिया गया और फिर यार बज़ा के मकाम पर आकर रहने लगे थे। रब बज़ा के मकाम पर ही उनकी वफ़ात हुई थी। उनके ईमान लाने के बारे में एक रिवायत ये है कि जब ये मक्का मुअज़्ज़मा आए तो उनकी मुलाकात हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई थी, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ही उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलवाया था। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, बैत करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें साथ ले गए। एक जगह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दरवाज़ा खोला। हम अंदर दाखिल हुए। अबू बकर सिद्दीक़ ने हमें अंगूर पेश किए। इस तरह ये पहला खाना था जो मैंने मक्का में आने के बाद खाया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु, इस मामले को अभी छुपाए रखना। अब तो तुम अपनी कौम में वापस जाओ और उन्हें बताओ ताकि वो लोग मेरे पास आ सकें। फिर जब तुम्हें मालूम हो कि हमने खुद अपने मामला का खुल्लम खुला ऐलान कर दिया है तो इस वक्त तुम हमारे पास आ जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, कसम है इस ज़ात की जिसने आपको सच्चाई देकर भेजा, मैं उन लोगों के दरमियान खड़े होकर पुकार पुकार कर ऐलान करूंगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं ईमान लाने वाले देहाती लोगों में से 5वां आदमी था। गर्ज़ जिस वक्त कुरैश के लोग हरम में जमा हुए, उन्होंने बुलंद आवाज़ में चला कर कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बुलंद आवाज़ में ये ऐलान सुनकर कुरैशियों ने कहा, इस बद्दीन को पकड़ लो। उन्होंने हज़रत अबू ज़र के पकड़ लिया और बेइंतहा मारा। एक रिवायत में अल्फाज ये हैं, वो लोग उन पर चढ़ दौड़े, पूरी कुव्वत से उन्हें मारने लगे, यहाँ तक कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। उस वक्त हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु दरमियान में आ गए। वो उन पर झुक गए और कुरैशियों से कहा, तुम्हारा बुरा हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये शख्स कबीला गफ्फार से है? उनका इलाका तुम्हारी तिजारत का रास्ता है। उनके कहने का मतलब ये था कि कबीला गफ्फार के लोग तुम्हारा रास्ता बंद कर देंगे। इस पर उन लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, इसके बाद मैं ज़मज़म के कुएं के पास आया, अपने बदन से खून धोया। अगले दिन मैंने फिर ऐलान किया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने फिर मुझे मारा। इस रोज़ भी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ही ने मुझे उनसे छुड़ाया। फिर मैं वहाँ से वापस हुआ और अपने भाई 19 के पास आया। 19 ने मुझसे कहा, तुम क्या कर आए हो? मैंने जवाब दिया, मुसलमान हो गया हूँ और मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक कर दी है। इस पर 19 ने कहा, मैं भी बुतों से बेजार हूँ और इस्लाम कबूल कर चुका हूँ। इसके बाद हम दोनों अपनी वालदा के पास आए तो वो बोली, मुझे पिछले दीन से कोई दिलचस्पी नहीं रही, मैं भी इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, अल्लाह के रसूल की तस्दीक कर चुकी हूँ। इसके बाद हम अपनी कौम गफ्फार के पास आए, उनसे बात की। उनमें से आधे तो इसी वक्त मुसलमान हो गए। बाकी लोगों ने कहा, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे हम उस वक्त मुसलमान होंगे। चुनाचे जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो कबीला गफ्फार के बाकी लोग भी मुसलमान हो गए। इन हजरात ने जो ये कहा था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे हम उस वक्त मुसलमान होंगे, तो उनके ये कहने की वजह ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से इरशाद फरमाया था, मैं नखलिस्तान यानी खजूरों के बाग की सरज़मीन में जाऊंगा जो यसरब के सिवा कोई नहीं है, तो क्या तुम अपनी कौम को ये खबर पहुंचा दोगे? मुमकिन है इस तरह तुम्हारे ज़रिए अल्लाह ताला उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा दे और तुम्हें उनकी वजह से अजर मिले। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीला असलम के लोग आए। उन्होंने आपसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हम भी इसी बात पर मुसलमान होते हैं जिस पर हमारे भाई कबीला ग़िफ़ार के लोग मुसलमान हुए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, अल्लाह ताला ग़िफ़ार के लोगों की मग़फ़िरत फरमाए और कबीला असलम को अल्लाह सलामत रखे। ये हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा हज के लिए मक्का गए।
तवाफ के दौरान काबे के पास ठहर गए। लोग उनके चारों तरफ जमा हो गए। उस वक्त उन्होंने लोगों से कहा, भला बताओ तो, तुम में से कोई सफर में जाने का इरादा करता है तो क्या वो सफर का सामान साथ नहीं लेता? लोगों ने कहा, बेशक साथ लेता है। तब आपने फरमाया, तो फिर याद रखो, क़यामत का सफर दुनिया के हर सफर से कहीं ज्यादा लंबा है, और जिसका तुम यहां इरादा करते हो, इसीलिए अपने साथ उस सफर का वो सामान ले लो जो तुम्हें फायदा पहुंचाए। लोगों ने पूछा, हमें क्या चीज फायदा पहुंचाएगी? हजरत अबू ज़र गफ़ारी बोले, बुलंद मकसद के लिए हज करो, क़यामत के दिन का ख्याल करके ऐसे दिनों में रोजे रखो जो सख्त गर्मी के दिन होंगे, और कब्र की वहशत और अंधेरे का ख्याल करते हुए रात की तारीकी में उठकर नमाजें पढ़ो। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद हजरत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए। कहा जाता है देहात के लोगों में से मुसलमान होने वालों में ये तीसरे या चौथे आदमी थे। एक कौल ये है कि पांचवें थे। ये अपने भाइयों में सबसे पहले मुसलमान हुए। उनके इस्लाम लाने का वाक़या यूं है कि उन्होंने ख्वाब में जहन्नुम को देखा। उसकी आग बहुत खौफनाक अंदाज में बरक रही थी। ये खुद जहन्नुम के किनारे खड़े थे। ख्वाब में उन्होंने देखा कि उनका बाप उन्हें जहन्नुम में धकेलना चाहता है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दामन पकड़कर उन्हें दोज़ख में गिरने से रोक रहे हैं। इसी वक्त घबराहट के आलम में उनकी आंख खुल गई। उन्होंने फौरन कहा, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि यह ख्वाब सच्चा है। साथ ही उन्हें यकीन हो गया कि जहन्नुम से उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बचा सकते हैं। फौरन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए, उन्हें अपना ख्वाब सुनाया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इस ख्वाब में तुम्हारी भलाई और खैर पोशीदा है। अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, उनकी पैरवी करो। चुनाचे हजरत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने आपसे पूछा, ए मोहम्मद, आप किस बात की दावत देते हैं? आपने इरशाद फरमाया, मैं इस बात की दावत देता हूं कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, कोई उसके बराबर का नहीं, और ये ही कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और तुम जो ये पत्थरों की इबादत करते हो उसको छोड़ दो। ये पत्थर न सुनते हैं, न देखते हैं, न नुकसान पहुंचा सकते हैं और न फायदा पहुंचा सकते हैं। ये सुनते ही हजरत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए। उनके वालिद का नाम सईद बिन आस था। उसे बेटे के इस्लाम कबूल करने का पता चला तो आग बगोला हो गया। बेटे को कूड़े से मारना शुरू किया, यहां तक कि इतने कूड़े मारे कि कूड़ा टूट गया। फिर उसने कहा, तूने मोहम्मद की पैरवी की, हालांकि तू जानता है वो पूरी कौम के खिलाफ जा रहा है, वो अपनी कौम के माबूदों को बुरा कहता है। ये सुन के हजरत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, अल्लाह की कसम, वो जो पैगाम लेकर आए हैं मैंने उसको कबूल कर लिया है। इस जवाब पर वो और गजबनाक हुआ और बोला, खुदा की कसम, मैं तेरा खाना पीना बंद कर दूंगा। हजरत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, अगर आप मेरा खाना पीना बंद कर देंगे तो अल्लाह ताला मुझे रोटी देने वाला है। तंद आकर सईद ने बेटे को घर से निकाल दिया। साथ ही अपने बाकी बेटों से कहा, अगर तुम में से किसी ने भी उससे बातचीत की, मैं उसके भी यही हशर करूंगा। हजरत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु घर से निकलकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। उसके बाद वो आपके साथ ही रहने लगे, बाप से बिल्कुल बेताल्लुक हो गए। यहां तक कि जब मुसलमानों ने काफिरों के मजालिम से तंग आकर हबशा की तरफ हिजरत की तो ये हिजरत करने वालों में से पहले आदमी थे। एक मर्तबा उनका बाप बीमार हुआ। उस वक्त उसने कसम खाई, अगर खुदा ने मुझे इस बीमारी से सेहत दे दी तो मैं मक्का में कभी मोहम्मद के खुदा की इबादत नहीं होने दूंगा। बाप की ये बात हजरत खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु तक पहुंची तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह, इसे इस मर्ज से कभी निजात न देना। चुनाचे उनका बाप इसी मर्ज में मर गया। खालिद बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु पहले आदमी हैं जिन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी। उनके बाद उनके भाई उमर बिन सईद रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए। उनके मुसलमान होने का सबब यह हुआ कि उन्होंने ख्वाब में एक नूर देखा। नूर जमजम के पास से निकला और उससे मदीने के बाग तक रोशन हो गए, और इतने रोशन हुए कि उनमें मदीने की ताज़ा खजूरें नजर आने लगी। उन्होंने ये ख्वाब लोगों से बयान किया तो उनसे कहा गया, जमजम अब्दुल मुत्तलिब के खानदान का कुआं है,
और ये नूर भी उन्हीं में से ज़ाहिर होगा। फिर जब उनके भाई खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए तो उन्हें ख्वाब की हकीकत नज़र आने लगी, चुनाचे ये भी मुसलमान हो गए। उनके अलावा सईद की औलाद में से रयान और हुक्म भी मुसलमान हुए। हुक्म का नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रखा। इसी तरह इब्तदाई दिनों में मुसलमान होने वालों में हज़रत सहब रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। उनका बाप ईरान के बादशाह कुसरी का गवर्नर था। एक मर्तबा कैसर की फौजों ने उसके इलाके पर हमला किया। इस लड़ाई में सहब रज़ी अल्लाह अन्हु गिरफ्तार हो गए। उन्हें गुलाम बना लिया गया। उस वक्त ये बच्चे थे, चुनाचे ये गुलामी की हालत में ही रूम में पले बढ़े, वहीं जवान हुए। फिर अरब के कुछ लोगों ने उन्हें खरीद लिया और फरोख्त करने के लिए मक्का के करीब उकास के बाजार में ले आए। इस बाजार में मेला लगता था। इस मेले में गुलामों की खरीद व फरोख्त होती थी। मेले से एक शख्स अब्दुल्ला बिन जुदान ने खरीद लिया। इस तरह ये मक्का में गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हो गया। उनके दिल में आई कि जाकर बात तो सुनूं। ये सोचकर घर से निकले। रास्ते में उनकी मुलाकात अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु से हुई। उन्होंने उनसे पूछा, साहब कहाँ जा रहे हो? ये फौरन बोले, मैं मोहम्मद के पास जा रहा हूं ताकि उनकी बात सुनूं और देखूं वो किस चीज की तरफ दावत देते हैं। ये सुनकर अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, मैं भी इसी इरादे से घर से निकला हूं। ये सुनकर सहब रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, तब फिर इकट्ठे ही चलते हैं। अब दोनों एक साथ कदम उठाने लगे। हज़रत सहब और हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने दोनों को अपने पास बिठाया। जब ये बैठ गए तो आपने उनके सामने इस्लाम पेश किया और कुरान करीम की जो आयत आप पर उस वक्त तक नाजिल हो चुकी थी वो पढ़कर सुनाए। उन दोनों ने इसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। इसी रोज शाम तक ये दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे। शाम को दोनों चुपके से चले आए। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु सीधे अपने घर पहुंचे तो उनके माँ बाप ने उनसे पूछा कि दिन भर कहाँ थे। उन्होंने फौरन ही बता दिया कि वो मुसलमान हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने उनके सामने भी इस्लाम पेश किया और उस दिन उन्होंने कुरान पाक का जो हिस्सा याद किया था वो उनके सामने तिलावत किया। उन दिनों को ये कलाम बेहद पसंद आया। दोनों फौरन ही बेटे के हाथ पर मुसलमान हो गए। इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को अत्तय्यबुल मुतय्यब कहा करते थे, यानी पाकबाज और पाक करने वाले। इसी तरह हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाए तो कुछ अरसे बाद उनके वालिद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी मुसलमान हो गए। इनके इस्लाम लाने की तफसील यूं है। एक मर्तबा कुरैश के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आए। उनमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। कुरैश के लोग तो बाहर रह गए। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु अंदर चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखकर फरमाया, इन बुजुर्ग को जगा दो। जब वो बैठ गए तब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये आपके बारे में हमें कैसी बातें मालूम हो रही हैं? आप हमारे माबूदों को बुरा कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हुसैन, आप कितने माबूदों को पूछते हैं? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, हम 7 माबूदों की इबादत करते हैं। उनमें से 6 तो ज़मीन में हैं, 1 आसमान पर। इस पर आपने फरमाया, और अगर आपको कोई नुकसान पहुंच जाए तो फिर आप किससे मदद मांगते हैं? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बोले, इस सूरत में हम इससे दुआ मांगते हैं जो आसमान में है। ये जवाब सुनकर आपने फरमाया, वो तो तन्हा तुम्हारी दुआएं सुनकर पूरी करता है और तुम इसके साथ दूसरों को भी शरीक करते हो। ए हुसैन, क्या तुम अपने इस शिर्क से खुश हो? इस्लाम कबूल करो, अल्लाह ताला तुम्हें सलामती देगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुनते ही मुसलमान हो गए। इसी वक्त उनके बेटे हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह अन्हु उठकर बाप की तरफ बढ़े और उनसे लिपट गए। इसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने वापस जाने का इरादा किया तो आपने अपने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, उन्हें उनके घर तक पहुंचा कर आए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब दरवाजे से बाहर निकले तो वहां कुरैश के लोग मौजूद थे। लोहित देखते ही बोले,
लो ये भी बेदीन हो गया। इसके बाद वो सब लोग अपने घरों को लौट गए और सहाबाए कराम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके घर तक पहुंचाया। इसी तरह 3 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया तौर पर तबलीग करते रहे। इस दौरान जो शख्स भी मुसलमान होता था वो मक्का की घाटियों में छुप कर नमाज़ें अदा करता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु कुछ दूसरे सहाबा के साथ मक्का की एक घाटी में थे कि अचानक वहाँ कुरैश की एक जमात पहुँच गई। उस वक्त सहाबा नमाज पढ़ रहे थे। मुशरिकों को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। वो उन पर चढ़ दौड़े, साथ में बुरा भला भी कह रहे थे। ऐसे में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनमें से एक को पकड़ लिया और उसको एक ज़रब लगाई। इससे उसकी खाल फट गई, खून बह निकला। ये पहला खून है जो इस्लाम के नाम पर बहाया गया। अब कुरैशी दुश्मनी पर उतर आए। इस बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान पर तशरीफ़ ले आए ताकि दुश्मनों से बचाव रहे। इस तरह हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु का ये मकान इस्लाम का पहला मरकज़ बना। इस मकान को दारे अरकम कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दारे अरकम में तशरीफ़ लाने से पहले लोगों की एक जमात मुसलमान हो चुकी थी। अब नमाज दारे अरकम में अदा होने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को वहीं पर नमाज पढ़ाते, वहीं बैठकर इबादत करते और मुसलमानों को दीन की तालीम देते। इस तरह 3 साल गुजर गए। फिर अल्लाह ताला ने आपको एलानिया तबलीग का हुक्म फरमाया। एलानिया तबलीग की इब्तिदा भी दारे अरकम से हुई। पहले आप यहाँ खुफिया तौर पर दावत देते रहे थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने सूरह शोरा में आपको हुक्म फरमाया और आप अपने नज़दीक के अहले ख़ानदान को डराए। ये हुक्म मिलते ही आप काफ़ी परेशान हुए, यहाँ तक कि आपकी फुफियों ने ख्याल किया कि आप कुछ बीमार हैं। चुनाचे वो आपकी बीमार पुरसी के लिए आपके पास आए। तब आपने उनसे फरमाया, मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं अपने करीबी रिश्तेदारों को आखिरत के अजाब से डराऊं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तमाम बनी अब्दुल मुत्तलिब को जमा करूँ और उन्हें अल्लाह की तरफ आने की दावत दूँ। ये सुनकर आपकी फुफियों ने कहा, ज़रूर जमा करें, मगर अबू लहब को ना बुलाइएगा, क्योंकि वो हरगिज़ आपकी बात नहीं मानेगा। अबू लहब का दूसरा नाम अब्दुल उज़्ज़ी था। ये आपका चचा था और बहुत खूबसूरत था, मगर बहुत संगदिल और मखरूर था। दूसरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी अब्दुल मुत्तलिब के पास दावत भेजी। उस पर वो सब आपके यहाँ जमा हो गए। उनमें अबू लहब भी था। उसने कहा, ये तुम्हारे चचा और उनकी औलादे जमा हैं। तुम जो कुछ कहना चाहते हो कहो और अपनी बेदीनी को छोड़ दो। साथ ही तुम ये भी समझ लो कि तुम्हारी कौम में यानी हम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारी खातिर सारे अरबों से दुश्मनी ले सकें। लिहाजा अगर तुम अपने मामले पर उड़े रहे तो खुद तुम्हारे खानदान वालों ही का सबसे ज्यादा फर्ज होगा कि तुम्हें पकड़कर कैद कर दें, क्योंकि कुरैश के तमाम खानदान और कबीले तुम पर चढ़ दौड़े। इससे तो यही बेहतर होगा कि हम ही तुम्हें कैद कर दें। और मेरे भतीजे, हकीकत यह है कि तुमने जो चीज अपने रिश्तेदारों के सामने पेश की है, इससे बदतर चीज किसी और शख्स ने आज तक पेश नहीं की होगी। आपने उसकी बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं फरमाई और हाज़रीन को अल्लाह का पैगाम सुनाया। आपने फरमाया, ए कुरैश, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आपने उनसे ये भी फरमाया, ए कुरैश, अपनी जानों को जहन्नम की आग से बचाओ। वहां सिर्फ आपके रिश्तेदार ही जमा नहीं थे, बल्कि कुरैश के दूसरे कबीले भी मौजूद थे। इसलिए आपने उनके कबीलों के नाम ले लेकर उन्हें मुखातिब फरमाया, यानी आपने ये अल्फाज अदा फरमाए, ए बनी हाशिम, अपनी जानों को जहन्नुम के अजाब से बचाओ। ए बनी अब्द शम्स, अपनी जानों को जहन्नुम की आग से बचाओ। ए बनी अब्द मनाफ, ए बनी ज़ोहरा, ए काब बिन लूवी, ए बनी मरू बिन काब, अपनी जानों को जहन्नुम की आग से बचाओ। ए सफिया, मोहम्मद की फूफी, अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाओ। एक रिवायत के मुताबिक आपने ये अल्फाज भी फरमाए, ना मैं दुनिया में तुम्हें फ़ायदा पहुंचा सकता हूं, ना आखिरत में कोई फ़ायदा पहुंचाने का इख्तियार रखता हूं, सिवाय इस सूरत के कि तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। चूंकि तुम्हारी मुझसे रिश्तेदारी है, इसलिए इसके भरोसे पर कुफ्र और शिर्क के अंधेरों में गुम ना रहना। इस पर अबू लहब आग बगोला हो गया। उसने तिल मिलाकर कहा, तू हलाक हो जाए, क्या तूने हमें इसीलिए जमा किया था? फिर सब लोग चले गए।
इसके बाद कुछ दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने आपको अल्लाह की जानिब से अल्लाह ताला के पैगाम को हर तरफ फैला देने का हुक्म सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा लोगों को जमा फरमाया। उनके सामने ये खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं ख़ास तौर पर तुम्हारी तरफ और आम तौर पर सारे इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह की कसम, तुम जिस तरह जागते हो उसी तरह एक दिन हिसाब किताब के लिए दोबारा जगाए जाओगे। फिर तुम जो कुछ कर रहे हो उसका हिसाब तुमसे लिया जाएगा। अच्छाइयों और नेक आमाल के बदले में तुम्हें अच्छा बदला मिलेगा और बुराई का बदला बुरा मिलेगा। वहां बिलाशुबा हमेशा हमेशा के लिए जन्नत है या हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। अल्लाह की कसम, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, मेरे इल्म में ऐसा कोई नौजवान नहीं जो अपनी कौम के लिए इससे बेहतर और आला कोई चीज लेकर आया हो। मैं तुम्हारे वास्ते दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुतबे को सुनकर अबू लहब ने सख्त तरीन अंदाज में कहा, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम ये एक फितना है। इससे पहले कि कोई दूसरा इस पर हाथ डाले, बेहतर यह है कि तुम ही इस पर काबू पालो। ये मामला ऐसा है कि अगर तुम इसकी बात सुनकर मुसलमान हो जाते हो तो ये तुम्हारे लिए जिल्लत और रुसवाई की बात होगी। अगर तुम इसे दूसरे दुश्मनों से बचाने की करोगे तो तुम खुद कत्ल हो जाओगे। इसके जवाब में उसकी बहन यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी सफिया रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, भाई क्या अपने भतीजे को इस तरह रुसवा करना तुम्हारे लिए मुनासिब है? और फिर अल्लाह की कसम, बड़े बड़े आलिम ये खबर देते आ रहे हैं कि अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में से एक नबी जाहिर होने वाले हैं, लिहाजा मैं तो कहती हूं यही वो नबी हैं। अबू लहब को यह सुनकर गुस्सा आया। वो बोला, अल्लाह की कसम, ये बिल्कुल बकवास और घरों में बैठने वाली औरतों की बातें हैं। जब कुरैश के खानदान हम पर चढ़ाई करने आएंगे और सारे अरब उनका साथ देंगे तो उनके मुकाबले में हमारी क्या चलेगी? खुदा की कसम, उनके लिए हम एक तरनवाले की हैसियत होंगे। इस पर अबू तालिब बोल उठे, अल्लाह की कसम, जब तक हमारी जान में जान है हम उनके हिफाजत करेंगे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ गए और तमाम कुरैश को इस्लाम की दावत दी। उन सब से फरमाया, ए कुरैश, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है और वो तुम पर हमला करना चाहता है तो क्या तुम मुझे झूठा ख्याल करोगे? सबने एक जुबान होकर कहा, नहीं, इसलिए कि हमने आपको आज तक झूठ बोलते हुए नहीं सुना। अब आपने फरमाया, ए गुरोह कुरैश, अपनी जानों को जहन्नुम से बचाओ, इसलिए कि मैं अल्लाह ताला के हाथ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। मैं तुम्हें इस जबरदस्त अजाब से साफ डरा रहा हूं जो तुम्हारे सामने है। मैं तुम लोगों को दो कलमे कहने की दावत देता हूं जो जबान से कहने में बहुत हल्के हैं लेकिन तराजू में बेहद वजन वाले हैं। एक इस बात की गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, दूसरे ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। अब तुम में से कौन है जो मेरी इस बात को कबूल करता है? आपके खामोश होने पर उनमें से कोई न बोला तो आपने अपनी बात फिर दोहराई। फिर आपने तीसरी बार अपनी बात दोहराई, मगर इस बार भी सब खामोश खड़े रहे। इतना हुआ कि सबने आपकी बात खामोशी से सुन ली और वापस चले गए। एक दिन कुरैश के लोग मस्जिद हराम में जमा थे, बुतों को सजदे कर रहे थे। आपने ये मंजर देखा तो फरमाया, ए गुरोह कुरैश, अल्लाह की कसम, तुम अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते से हट गए हो। आपकी बात के जवाब में कुरैश बोले, हम अल्लाह ताला की मोहब्बत ही में बुतों को पूजते हैं ताकि इस तरह हम अल्लाह ताला के करीब हो सकें। इस मौके पर अल्लाह ताला ने उनकी बात के जवाब में वही नाजिल फरमाई। तर्जुमा, आप फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे और तुम्हारे सब गुनाहों को माफ कर देंगे। सूरत आले इमरान आयत 31। कुरैश को ये बात बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने अबू तालिब से शिकायत की, अबू तालिब, तुम्हारे भतीजे ने हमारे माबूदों को बुरा कहा है, हमारे दीन में ऐब निकाले हैं, हमें बेअक्ल ठहराया है, उसने हमारे बाप दादा तक को गुमराह कहा है। इसलिए या तो हमारी तरफ से आप निपटिए या हमारे और उसके दरमियान से हट जाए, क्योंकि खुद आप भी उसी दीन पर चलते हैं जो हमारा है और उसके दीन के आप भी खिलाफ हैं।
अबू तालिब ने उन्हें नरम अल्फाज में ये जवाब देकर वापस भेज दिया कि अच्छा, मैं उन्हें समझाऊंगा। इधर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आपकी खिदमत में भेजा। हज़रत जिब्रील निहायत हसीन शक्ल सूरत में बेहतरीन खुशबू लगाए ज़ाहिर हुए और बोले, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाते हैं और फरमाते हैं कि आप तमाम जिनों और इंसानों की तरफ से अल्लाह ताला के रसूल हैं, इसलिए उन्हें कल ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ बुलाइए। ये हुक्म मिलते ही आपने कुरैश को बराह रास्त तबलीग शुरू कर दी, और हालत उस वक्त ये थी कि काफिरों के पास पूरी ताकत थी और वो आपकी पैरवी करने के लिए हरगिज तैयार नहीं थे। कुफ्र और शिर्क उनके दिलों में बसा हुआ था। बुतों की मोहब्बत उनके अंदर सरायत कर चुकी थी। उनके दिल उस शिर्क और गुमराही के सिवा कोई चीज भी कबूल करने पर आमादा नहीं थे। शिर्क की ये बीमारी लोगों में पूरी तरह समा चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का ये सिलसिला जब बहुत बढ़ गया तो कुरैश के दरमियान हर वक्त आप ही का जिक्र होने लगा। वो लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़कर आपसे दुश्मनी पर उतर आए, आपके कत्ल के मंसूबे बनाने लगे, यहां तक सोचने लगे कि आपका माशरती बाइकआउट कर दिया जाए। लेकिन ये लोग पहले एक बार फिर अबू तालिब के पास गए और उनसे बोले, अबू तालिब, हमारे दरमियान आप बड़े काबिल, इज्जतदार और बुलंद मर्तबा आदमी हैं। हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि आप अपने भतीजे को रोकिए, मगर आपने कुछ नहीं किया। हम लोग ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे माबूदों को और बाप दादाओं को बुरा कहा जाए, हमें बेअक्ल कहा जाए। आप उन्हें समझा लें, वरना हम आपसे और उनसे उस वक्त तक मुकाबला करेंगे जब तक कि दोनों फरीकों में से एक खत्म ना हो जाए। कुरैश तो ये कहकर चले गए। अबू तालिब परेशान हो गए। वो अपनी कौम के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थे। दूसरी तरफ वो इस बात को पसंद नहीं कर सकते थे कि कोई भी शख्स हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुस्वा करने की कोशिश करे। इसलिए उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे ये कहा है, इसलिए अपने ऊपर और मुझ पर रहम करो और मुझ पर ऐसा बोझ ना डालो जिसको मैं उठा ना सकूं। अबू तालिब की इस गुफ्तगू से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल किया कि अब चचा उनका साथ छोड़ रहे हैं। वो भी अब आपकी मदद नहीं करना चाहते, आपकी हिफाजत से हाथ उठा रहे हैं। इसलिए आपने फरमाया, चचा जान, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रखते और ये कहें कि मैं इस काम को छोड़ दूं, तो भी मैं हरगिज उसे नहीं छोड़ूंगा, यहां तक कि खुद अल्लाह ताला इसको जाहिर फरमा दे। ये कहते हुए आपकी आवाज भरा गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए। फिर आप उठकर जाने लगे, लेकिन उसी वक्त अबू तालिब ने आपको पुकारा, भतीजे इधर आओ। आप उनकी तरफ मुड़े तो उन्होंने कहा, जाओ भतीजे, जो दिल चाहे कहो, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा।